If today Paramahansa Yogananda comes in front of you and says, "Ki, Mango Vats kya maango," what will you ask him? I'll say, I want to be one with you. And if he says that, I was speaking before the president, Pranab Mukherjee at that time. 3 minutes मिले मुझे. विवेक आपका 2 minutes करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा 1 minute. शेड्यूल बड़ा टाइट है. तो क्या वो मोमेंट था जब आपको एक्चुअल में कंफर्म हो गया विद इन योर ओन सेल्फ कि नाउ आई एम नॉट वांटेड टू कंटिन्यू विद द सिविल सर्विस? So I realized I want to be more independent, go and do these motivational talks. Here the government is requiring me. 24 years I'd served. 22 years जब हो गए थे तो मैंने decide कर लिया. तो IAS से out होना, not that much of a jolt with that mindset. So I was ready for it. I, as a practitioner of meditation for 20 years, I follow Yogananda's teachings, Yogoda Satsang Society, Kriya Yoga, twice a day. As long as you are human, something happened to you 1 hour ago. That episode may come to your mind. So the mind is drifting automatically. What you have to do is to bring it back. There is a book called How to Change Others. लेकिन उसके first page में लिखा है, if you want to change others, change yourself. Your change starts. Change starts from. You burn out at 40 or 37 or 38. What is the point? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि हर इंटरव्यूअर आपसे पूछे पर वो पूछता है? उसको पूछना चाहिए, अगर आप ये ना होते तो क्या होता? तो पूछो. तो अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते? What is your favorite cuisine? I think South Indian. Home cooked food or Home cooked. vegetarian, non-vegetarian? Vegetarian. What is Chandigarh for you? Heartthrob. Hello. So today my guest that I'm going to interview is none other than Mr. Vivek Katre. He's the one who's led two fascinating lives. One, as a senior IAS officer who has shaped policy and governance in the country. Two, as a motivational speaker and author who has written a lot of books and helped millions of people gain a lot of clarity of purpose and intent. So, I'm very happy to be meeting Mr. Vivek Katre. Please stay tuned for this conversation. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mic Check with Shreya, and today I have a very well-known yet very interesting person with me on my YouTube channel, none other than Mr. Vivek Katre. Thank you so much for coming aboard our channel and agreeing for this shoot. Thank you, Shreya. Thank you. Nice to be here. Yeah. So I want to ask you, जब आप civil services में जाने वाले थे, what was one inspiration or one quality that was guiding you? जब मैं ज्वाइन करने वाला था, I think my father's personality was paramount. He was very inspiring. उनको देख के ही मुझे लगता था. Otherwise, I was a cricketer. मुझे क्रिकेटर बनना था. 19 तक तो definitely. उसके बाद जब लगा कि अब क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई थी, तो then I thought कि civil services is the next best for me. And my dad was inspiring. Unfortunately, he died when I was very young. तो मुझे उनकी जगह जॉब मिल गई पहले. उसके बाद long years ahead, I joined the IAS. But the thought was that I should serve the society in an inspiring way. वो भी अभी भी वो thought है. तो उस time definitely था to join the service. Okay. So do you think in your tenure of IAS, what was one significant moment that you still look back and like the wow moment of your career? Let's take 2 or 3. So when I was not even in the IAS, I was in the HCS, and I was Director IT of Chandigarh. Dr. Manmohan Singh came as the Prime Minister of India. IT Park का inauguration था. मैं वहाँ पे था. Chief Secretary जो advisor थे Mr. Lalit Sharma. He introduced me and he said some nice things about me because I was working hard for the IT Park. So Dr. Manmohan Singh listened very carefully and he shook my hand. He held my hand. It was very inspiring. Secondly, when I was SDM Kalka before that, so lots of old and young people would come and bless me. And they were like, I was a youngster, so 24, 25. So that those blessings were wow also. And the President of India later, Rashtrapati Bhavan, I was speaking before the President, Pranab Mukherjee at that time. 3 minutes मिले मुझे. तो वो ब्रिगेडियर साहब जो उनके एडीसी थे वो आते, विवेक आपका 2 minutes करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा 1 minute. शेड्यूल बड़ा टाइट है. मैं सर आप प्रेसिडेंट का 1 minute कट कर दो, मेरा नहीं होगा. Because I said मेरी स्पीच 3 minutes में बड़ी मुश्किल से पैक हुई है. तो he agreed. प्रेसिडेंट का नहीं कट किया होगा लेकिन मेरा भी नहीं किया, किसी और का किया होगा. So it's also a very inspiring moment to speak at Rashtrapati Bhavan. Okay. So how do you
think the IS has shaped the way Vivek that you are today? I think it's a great service. पहले मैं थोड़ा सा ऐसा था because my dad was in the IPS and I was also that sort of person. तो एक ऑरा बन जाता है आपका, लेकिन कुछ ऑरा होता है पोस्ट के साथ Yeah. और कुछ ऑरा होता है इंडिविजुअल. That aura is what you should develop as an officer. I think all youngsters watching, they should try and develop their personal aura, and that comes through your mindset, thoughts. और स्टेटस और जो कार है और जो सलूट है और जो वर्दी है या जो भी है वो टेम्पररी है. Right. और कई बार पोस्टिंग में भी चेंज हो जाती है. You might be in a posting where that those people don't even come and salute you anymore. They think you are खुदे line, as they say. तो और अपना ही बनाना पड़ता है. तो I think the IAS is a great service. It trains you well, and you see your seniors and your mentors and people who are inspiring, and there are lots of them. So I think you learn from them and you become like them. But you have to develop your own identity. Ultimately, as an officer, you have to have your own पहचान. कई बार हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, इसी की बाहर से सक्सेस, लाइक यू सेड, स्टेटस, कार्ड्स, एवरीथिंग, पर अंदर से उतने ही हॉलो, उतने ही परेशान, उतनी ही अनफुलफिल्ड. तो वो पावर से तो फुलफिलमेंट नहीं आ रही, विच इज क्लियर, राइट? तो आपने अपनी फुलफिलमेंट को व्हेन यू लेफ्ट द आईएएस कहाँ खोजा? And that's a good question. तो इसमें क्या होता है कि my book is called Finding Success Within, my main book. अभी एक और आ रही है, वैसे उसकी बात हम करेंगे, randomly yours. तो ultimately I think power and prestige and status are external and they are temporary. कुछ आते जाते हैं. और अभी तक मैं बोलता हूँ कि रोनाल्डो इज नंबर 1 ऑन इंस्टाग्राम इन द वर्ल्ड. ही इज बीन देयर फॉर 10 years. लेकिन कभी ना कभी तो टॉपल हो जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं. अब मेसी और रोनाल्डो अपना 6th वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. 7th खेलना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है. सो आई थिंक वी हैव टू डेवलप आवर इनर कासल. पावर और प्रेस्टीज जो है वो वन ऑफ द मटेरियल गोल्स है. मनी, पावर, फेम, all three are transient and they won't give you enough fulfillment जो आप कह रहे हैं. Fulfillment will come from winning your internal battles, like कि आपने एक छोटे से moment में you found some joy. We are enjoying this podcast at the moment. It can be a great moment. You might feel less joy in a situation where you are being recognized by hundreds of people because you find that it's hollow. You might feel more joy with your grandmother, with your child, with someone like that. And I think inner battle का एक और चीज़ है कि एक calmness, even mindedness अगर आ जाती है, डेवलप हो जाती है. मुश्किल है, ह्यूमन है हम लोग. अभी अगर कोई आके लड़ाई करने लग जाए तो हम भी उसको लगा देंगे 2-3. तो लेकिन ह्यूमन रिएक्शन है. लेकिन पहले से मैंने देखा अपने अंदर कि थोड़ा सा calmness आई है. So that is the victory and that is the fulfillment which comes. Of course, you need a certain amount of status, a certain amount of income, certain amount of power, but not beyond a point. वो नहीं देगा फिर आपको external extra happiness, extra power से नहीं आएगी. So my another question is directly related to what you just said, कि आपने कहा कि वो अंदर फिर fulfillment के लिए आपको you have to look within, बाहर नहीं मिलेगा. तो क्या वो मोमेंट था जब आपको एक्चुअल में कंफर्म हो गया विद इन योर ओन सेल्फ कि नाउ आई एम नॉट वांटिंग टू कंटिन्यू विद द सिविल सर्विसेज? व्हाट वाज दैट रियलाइजेशन? Yeah, so when I left the civil services, I was planning for 2 to 3 years. Okay. और मेरे 2 TEDx टॉक्स हुए थे तब तक, और मैं स्पीकर बन गया था. स्पीकर नॉट ऑफ द विधानसभा बट ऑफ द मोटिवेशनल टाइप. तो मैं सर्विस में जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर टाइप, चीफ गेस्ट, ऐसे अफसरों को ही बुला लेते हैं लोग. तो मैं जाके स्कूल में पेरेंट्स को डांट डूट देता था हॉल में कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चों पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो. सो आफ्टर दैट पीपल वुड कम टू मी, सर आपके स्पीच बड़ी जबरदस्त. देन आई रियलाइज कुछ है इसमें, दम है. सो देन आई सेड कि लेट मी डू मोर ऑफ दिस. सो आई स्टार्ट डूइंग मोर इन सर्विस, बट नॉट इनफ. तो 2-3 TEDx टॉक्स हो गए, जोश टॉक्स हो गए, कुछ और हो गए, वो भी इम्पैक्टफुल हो गए. बट देन आई वुड गेट इन्विटेशन फ्रॉम बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, को सोशल मीडिया शुरू हो गया था. चीफ सेक्रेटरी वुड राइटली से यार काम करो, तुम कहाँ जा रहे हो, अपनी पोस्टिंग संभालो. सो आई रियलाइज्ड I want to be more independent, go and do these motivational talks. Here the government is requiring me. 24 years I had served. 22 years जब हो गए थे तो मैंने decide कर लिया था. So when 24 years, 25 years हो गए तो I left. And by then they accepted my resignation. So I had that thought. Uncertainties होती हैं लाइफ में. और uncertainty क्या है? क्रिकेटर को uncertainty कुछ नहीं लगती है. मैं क्रिकेटर हूँ. किसी भी बॉल पे आप आउट हो सकते हैं.
46 पे खेल रहे हो, आप सोचो यार 100 तक अभी मतलब स्टडी खेलना है, और 47 पे आउट हो गए, क्या कर लोगे आप? तो आईएएस से आउट होना was not that much of a jolt with that mindset, so I was ready for it. एक कंट्री में जहाँ पे लोग आईएएस के साथ इतना प्रेस्टीज अटैच करते हैं, जहाँ पे लोग इस माइंडसेट से अभी तक भी नहीं निकल पाए कि आईएएस से सब इट इज प्रेस्टीजियस, बट लोग उसको एक अलग एंगल से देखते हैं। तो एक इतना प्रेस्टीज अटैच होना, आई थिंक यू हैव अ फैमिली, अ ब्यूटीफुल फैमिली, और उस टाइम आप उस एज में हो जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और यू हैव पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। आई एम नॉट सेइंग मनी इज द केपीआई, बट यू नीड दैट सोर्स ऑफ इनकम टू कंडक्ट योर लाइफ स्मूथली आफ्टर दैट। तो क्या आपके माइंड में किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं आई? नहीं, ये तो करना था कि one has to have income. So I have a pension, I have a salary from a university, then I have motivational income, speeches का. I'm a professional speaker, so I travel, I speak at corporates, government, academia. गवर्नमेंट के अलावा बाकी सब पे करते हैं, गवर्नमेंट लेकिन जरूरी है क्योंकि आई गो टू प्लेसेस लाइक मसूरी, स्पीकिंग ऑन मंडे टू द मालदीव्स ऑफिसर्स, मालदीव से ऑफिसर्स मसूरी आ रहे हैं, तो मुझे सुनने नहीं आ रहे, बट आई एम वन ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू स्पीक ओवर देयर. एंड देन आई स्पोक एट न्यू इंडिया एश्योरेंस के सारे क्रीम ऑफ इंडिया. देन आई स्पोक एट गोवा प्रिंसिपल्स आए हुए थे आईएसबी मोहाली में. तो ये खैर आईएसबी वाला वाज वेल पेड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस आल्सो, but it's a professional job, so I am very comfortable, and I realized at that time that if I have one assignment apart from this, I'll be fine, which is what happened. So from the corridors of the administration to the ladder of the corporate, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ इन बोथ वर्ल्ड्स? So I took a sabbatical in service also. ओके. 2 years मैंने बाहर बिताए गवर्नमेंट की परमिशन से. It was like an extraordinary leave where you go, and I was allowed to get salary from those companies. So I worked for KPMG 1 year and PwC 1 year, and I was e-governance consulting में था मैं. तो मैंने कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स भी देख लिए. वो आई रियलाइज कि ये सैलरी जॉब्स मेरे लिए नहीं है बाद में. बिकॉज आई वाज ट्राइंग टेस्टिंग द वाटर ना कि कैसा रहेगा. बिकॉज आई वाज ऑल्दो आई वाज कंफर्टेबल इन गवर्नमेंट, बट आई वांटेड टू डू मोर क्रिएटिव थिंग्स. तो क्या हुआ कि देन आई केम आउट. When I came out, then I was not craving for a full-time corporate job. So when I now go to the government, academia, corporates, it's all the same. But the essence of difference, what you're asking, government is a not-for-profit organization. चाहे कुछ भी बीच में गड़बड़ हो, कुछ भी हो, it is not for profit. And the core area of core goal of in business is profit. ये difference है. तो जो लोग आज कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशंस पे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं, पीस मिल नहीं रहा. कई बार लोग कहते हैं हम आंखें बंद करके मेडिटेशन में भी बैठे तब भी थॉट्स आ रहे हैं. थॉट्स तो आएंगे, एंड पीपल ऑफन से कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स. बहुत सब कुछ है, पैसा है, फेम है, एवरीथिंग है, पर मेडिटेशन में बैठ के भी अगर पीस नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज वन थिंग दैट दे नहीं नहीं, ये एक बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच है उनका. आई विल टेक अनदर 2 minutes on this one. There is a study by Harvard which says CEOs who meditate do much better in their work. Their assessment is impact study. A meditation is not a perfect science for those who are aspirants. It is a perfect science, but we are not perfect. So meditation आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है. कितनी कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, डेप्थ क्या है, that is not in your hand. I, as a practitioner of meditation for 20 years, I follow Yogananda's teachings, Yogoda Satsang Society, Kriya Yoga, twice a day. आज भी सुबह किया, अभी शाम को भी करनी है. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ योर ध्यान टाइम? हाउ मच? काफी ज्यादा लगेगा अगर मैं बोल दूंगा, बट मैं बोल देता हूँ 1 घंटा. 1 hour. Amazing. 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. Oh wow. So you get कितने थॉट्स आते हैं उस टाइम में? तो आते हैं. तो थॉट्स की जहाँ बात है, मैं कई बार पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ कि वो जो ऋषि मुनि पहाड़ पे मेडिटेशन कर रहे होते थे, तो अप्सरास डांस कर रही होती थी, वो अप्सरा नहीं थी, वो उनके थॉट्स थे. तो थॉट्स तो आएंगे आपको. यू मे बी अ ऋषि, you may be, as long as you are human, something happened to you 1 hour ago, that episode may come to your mind, tomorrow's meeting may come to your mind, somebody said something may come. अब स्वामी जी एक हमारे टॉक दे रहे थे, वो कहते हैं कि डिस्टर्बेंस कैसे होती है. यू मेडिटेटिंग, सडनली a vehicle sound comes, then you remember कि मेरी अपनी गाड़ी खराब है, वो ठीक करा ली. पिछली बार मैकेनिक ने चार्ज ज्यादा कर लिया, मेडिटेशन कर रहे हैं, he charged more money, this time I'm going to go to another mechanic. Then you start thinking कौन सी गाड़ियां आ गई मार्केट में. Then you realize कि मैं फ्रेंड्स के साथ इतने स्पीड पे जाता, फिर हम कसौली गए थे, गया का मेडिटेशन. So the mind is drifting automatically. What you have to do is to bring it back. So the tussle is in meditation, the techniques which you are doing
and then the thought goes here and there and then you bring it back. यही टसल है. कोई perfect meditation नहीं कर सकता. Right. If somebody says that he or she meditated for 1 hour without a single thought, Not possible. not possible. तो ये माइंडफुलनेस की जो जर्नी, बिकॉज एवरीवेयर इतने पॉडकास्ट आप सुन लो, इतने ज्यादा सोशल मीडिया में, इन बुक्स इट्स रिटन कि माइंडफुलनेस विद योगा, सो मेनी टेक्निक्स हैव कम आउट, तब भी पीस को लोग ढूंढ रहे हैं, तब भी मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. बात जब मेंटल हेल्थ की हो, जो लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो डिप्रेशन लेवल्स कम हो जाते हैं, नो डाउट, यू नो, यू गेट दोस पॉजिटिव हार्मोन्स इन योर बॉडी. So my question is for now the person who is saying they meditate for 1 hour, but still वो जो mind monkey है ना, उसको आप वापस नहीं ला पा रहे, तो वापस कैसे लाएं? So meditation techniques which are scientific, उसमें वो मदद मिलती है. हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है, पहले हम energization exercises करते हैं, 15 minutes yoga. Those are exercised by Paramahansa Yogananda, very structured. उनसे आपके जो body knots हैं, thoughts हैं, वो थोड़े से काम हो जाते हैं. Because physical exercise calms your body. जो ओवरथिंकर्स हैं उनको मैं बोलता हूँ कि जब आप रनिंग करोगे, स्पोर्ट खेलोगे, यंगस्टर्स को बोलता हूँ, तो आपके ओवरथिंकिंग कम हो जाती है. तो जो बॉडी काम्स एंड रिलैक्सेस इन अ डिफरेंट वे. तो आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मेडिटेशन के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं. इवन दो यू माइट थिंक कि एक्सरसाइज इज ऑपोजिट ऑफ मेडिटेशन, बट दिस इज अ टेंशन रिलैक्सेशन कामिंग एक्सरसाइजेस. एंड व्हेन यू सिट डाउन, द बॉडी नॉट्स एंड द माइंड नॉट्स आर कामर. और फिर उसमें एक प्रिलिमिनरी टेक्निक्स होते हैं. So I'll just tell you one technique. You clench your entire body and stiff कर लो उसको, and then you suddenly relax with double breathing. So you tense your body and then you do and you relax. So what happens mentally while doing that double breathing, you also try to get out your thoughts and your other disturbances mentally. Doesn't work all the time, but it relaxes your body and mind. So then you start doing scientific techniques जो हम करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनाइजेशन है, स्पाइन है, ब्रीदिंग है, तो फिर कुछ करने को है, तो देन योर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन इंप्रूव. क्योंकि आपको कुछ करना है मेडिटेशन में, तो फिर आपके थॉट्स कम हो जाएंगे. आई हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. अक्सर लोग कहते हैं ना, एक वो डार्क डे आता है लाइफ में, जब आपको लगता है कि मैं कहीं जाऊं तो प्रॉब्लम, मतलब आप कहीं नहीं जाने लायक होते, यू नो, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट्स इन द लाइफ. तो आपकी लाइफ में कभी क्या कोई डार्क डे आया जब आपको बहुत होपलेस फील हुआ, आपको लगा कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा? मैं ना बड़ा मोटिवेशनल सा इंसान हूं वैसे. इवन इफ आई वाज नॉट अ मोटिवेशनल, मैं सुबह उठता हूं तो आई एम ऑलवेज गंग, कुछ भी हो जाए. लेकिन अगर आप पूछ ही रही हैं तो एक दो दफा क्या हुआ, मैं तो सर्विस में था, अभी भी सर्विस में था, प्राइवेट कार में अपनी चलाता हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक टू यूज द गवर्नमेंट कार फॉर माय पर्सनल यूज. 3 दिन लगातार द पुलिसमैन स्टॉप मी. शायद एक दिन में 2 बार तो नहीं, आपने एक दिन पूछा, चलो 3 दिन लगातार एट द सेम पॉइंट. कभी इधर से जा रहा हूँ, कभी उधर से आ रहा हूँ. वो नॉर्मल पॉइंट है चंडीगढ़ का. कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी, कभी मेरे साथ वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, कभी रेड लाइट येलो लाइट हो गई है, कुछ है ऐसा, येलो लाइट हो गई इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट. सो आई रियलाइज्ड कि ये कुछ सीरीज चल रही है. सो देन आई मेडिटेटेड मोर. बट आई थिंक दीज थिंग्स आर नॉट टू बर्डनसम. एक स्टोरी ऑटोबायोग्राफी हुई योगी में. महाअवतार बाबा जी इज इन द हिल्स एंड वन डेवोटी गोज कि मुझे आप अपना डेवोटी बना लो. तो ही सेज नहीं, आप डेवोटी बनने लायक नहीं हो, जब आप थोड़ा सा और मेडिटेशन करके आओ फिर मेरे पास आओ. ही सेज मैं फिर जंप कर जाऊंगा हिल से अगर आप नहीं रिसीव करोगे, तो जंप कर जाओ. तो ही जंप्स एंड इन दैट इट्स अ multi-dimensional thing. Babaji revives him when he comes back. He said, now you have passed the test of faith. एक और केस में बाबा जी places a burning rod on the shoulder of the person. Everybody says, ये क्या कर? He says his karma was to probably die by burn today, but this little karma has obviated that. तो ये हमें नहीं समझ आती चीजें. These are beyond us. But I would say कि ये कर्म आपके ठीक हो रहे हैं, कुछ दिन आपका नहीं, bad days होते हैं ना. Some days are good, लेडीज some को days ज्यादा are पता होते हैं, मुझे भी पता है. तो आई रोट अ मिडल ऑफ दिस बैड हेयर डेज लॉन्ग बैक. बैड हेयर डे है तो उसका क्या कर लोगे आप, उस दिन आपके बाल ठीक होंगे ही नहीं. good. Sometimes things work out like that. Okay, so in your personal life, who are you the closest to? My wife Nina is my friend. Okay. So we started in 40 years ago we met. Wow. अभी एज का ज्यादा अंदाजा मत लगाना, हम स्कूल कॉलेज में ही थे. स्कूल कॉलेज में तो स्टूडेंट्स थे
and we were friends. Later we got married, and now again we are friends. So friendship जो है वो बहुत, and I think she's the closest, and of course my kids and my friends, a few friends. Yeah. सो आपको आज के टाइम में जब डाइवोर्स और ये चीजें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज आल्सो अ थिंग Part of कम it, अप, yeah. तो लोगों से रिश्ते नहीं संभल रहे क्योंकि खुद को नहीं संभाल पा रहे, राइट? मेंटल हेल्थ नहीं संभल रही तो फिर रिश्ते नहीं संभल रहे, कोई एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, इतने वर्ड आ चुके हैं कि रिलेशनशिप की देखो कोई परफेक्ट डेफिनेशन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम 40 इयर्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? कैसे आपने इस चीजों को, मतलब एक अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं इन योर करियर, हाउ डिड यू मैनेज ऑल? So again, I'll quote the autobiography. Yukteswar ji is the guru. And Paramahansa Yogananda says, "Are you not disappointed in me when he was a youngster? कि मैंने ऐसा किया और आप कुछ और चाहते थे." He says, "I don't expect anything from anyone, so their wishes cannot be in opposition to my wishes." अब ये perfect है कि कोई किसी से कुछ ना expect करे तो relationship आपका सही रहेगा, फिर तो मुझे कोई problem ही नहीं है ना किसी से। लेकिन क्योंकि हम human हैं, हम कुछ तो expect करेंगे, but we have to tone down our expectations and our impressions. कोई perfect नहीं होता। अगर हम perfection ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। So we have to understand and appreciate. There is a book called How to Change Others. What? And that book sold out very quickly where everybody wants to change others. लेकिन उसके first page में लिखा है, if you want to change others, change yourself. Your change starts with you. Change starts from. So change yourself जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, but वही करना पड़ेगा। दूसरे को relationship बना के रखने के लिए you have to see where can I accommodate a little bit. Beyond a point I can't, but थोड़ा बहुत तो मैं कर सकता हूँ ना। और अगर वो थोड़ा वो करेगा, थोड़ा आप करोगे तो बात बन जाएगी। अगर वो बिल्कुल ही नहीं वो नहीं कर रहा और आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है और प्रॉब्लम हो गई है, then the relationship will be harmed. But most people can be patient. Yeah. And I think the parents again have to play a better role. Yes. In many cases, the parents are impatient. And the parents are, rather than mending the relationships, they are responsible for spoiling it. Very often. वो नहीं करना चाहिए. We should give Let them the youngsters decide. what they want. That's a very contemporary modern thought in everyone. तो आजकल मैंने ना जेनजी में, ये जो जेनजी वर्ड आया है, इसमें मैंने अक्सर देखा कि वर्कaholics की कैटेगरी के साथ वो कहते हैं भाई हम नहीं सोच रहे, हमारे दिमाग में नेक्स्ट 40 काम का आता है. So if they are not able to work nicely because that is where they vent out their energy, they get frustrated कि हम काम नहीं कर पा रहे, ये क्या हो गया. और उसके पैरेलल लगा लो एक ऑप्शन भी है जिसमें जेनजी के वो लोग हैं जो ओवरथिंक कर रहे हैं, जो जनरली चीजों को काम भी करते हैं बट सोचते भी, बट दे बैलेंस आउट वर्क एंड फन. और एक इंसान बहुत ही काम पे फोकस्ड है सारा टाइम, दे फील अनप्रोडक्टिव अगर वो कुछ ना करें. तो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने तरीके से ओवरथिंक कर रहे हैं. एक ओवरथिंक कर रहा है लाइफ के बैटल्स को, एक ओवरथिंक कर रहा है लाइफ के काम को, पर फंसे दोनों ही माइंड में हुए. कई बार हम जब माइंड में ही फंसे रहते हैं तो हम रियल लाइफ में आके लाइफ की प्रॉब्लम्स में लाइफ को तो सॉल्व कर ही नहीं रहे, हम माइंड में एक बैटल है जिसको लड़े जा रहे हैं. और कई बार होता है कि इवन इफ आई एम डूइंग द पॉडकास्ट, ठीक है, देयर आर डेज यू नो जब मुझे कभी लगता है यार ये थॉट है और ये माइंड में स्पाइरल कर रहा है. अभी मोस्टली 99% नहीं हो रहा पर 1% हो जाता है. उस मोमेंट में टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, इज देयर एनी टेक्निक दैट यू कैन टेल? See, we have to raise the level of our consciousness. अब ये थोड़ी स्पिरिचुअल बात है, क्या करें इसमें. हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं अभी, अगर हम 7th फ्लोर पे हो हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और है. हमारा माइंड अगर लो लेवल पे है तो हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और है. और अगर हम थोड़ा बहुत फॉरगिविंग टाइप बन जाते हैं, या वर्कaholics को भी मैं ये कहूँगा कि you burn out at 40 or 37 or 38. What is the point? You have to carry yourself till a certain age in life where you're balancing your life. Health is very important. So if you are doing 80-20 rule and थोड़ा बहुत prioritization, थोड़ा health को prioritize कर रहे हैं, family time को कर रहे हैं, balanced work, and then overthinking जो आपने कहा, वो हमारा detrimental effect है. राइट. Perfection is not possible. Improvement is possible. तो मैं अपने टॉक्स में बोलता हूँ आपका कौन सा वर्जन चल रहा है आईफोन का आजकल? कहते सर 17 ये वो. मेरे पास तो OnePlus है, मैं तो खुश हूँ. आप ये बताओ आपका कौन सा वर्जन चल रहा है? तो देखते हैं. मैं कहता है क्लास 12 में हो या 3rd ईयर में हो तो आपका क्या 15 वर्जन चल रहा है? नहीं सर, किसी का 4 चल रहा है, किसी का 20 चल रहा है. सो व्हाट आर वी डूइंग टू अपग्रेड आवर ओन वर्जन? So for that we need to become less worried, less of a gossiper and hatred kind of person, jealous, and become more cheerful, empathetic, etc. And to be less of a workaholic, spend more family time.
बच्चे जितनी जल्दी बड़े होते हैं, आपको पता है, एज अ यंग गर्ल यू नो, न्यूली मैरिड, तो खुद आप कितने जल्दी बड़े हो जल्दी गए बड़े हो, हो आपके गए। पेरेंट्स, आई मीन हम लोग देखते हैं कि बच्चे कितने बड़े जल्दी बड़े हो गए, वी कुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद देम. Correct. So prioritize and change and reorient your life if you have to. Raise the level of your thought, consciousness. छोटी छोटी बातों में मत पड़ो. And I That's think वो छोटी चीजें, हम आइडियाज की बात करें हाँ. ना कि लोगों की, right? हम माइंडफुलनेस कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ना डिस्कोर्सेस सुनते हैं स्पिरिचुअल, कुछ लोग मेडिटेशंस में बैठ जाते हैं, पर सवाल फिर भी यही रहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे जहां तक पहुंचना चाहिए. बट आई थिंक दैट इज द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. Yeah. जब आप खुद के द्वार खोल रहे हैं एक एक करके, एंड देन यू आर रेजिंग योर लेवल ये ऑफ जो एक एक करके आपने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सो द करंट बुक, यू नो इट, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, वो भी ये बोलता है इंक्रीमेंटल चेंज. आज से कल परसों तक थोड़ा सा मैं इम्प्रूव हो जाऊं, वही बहुत है. एक एक करके आपको लेयर्स को इम्प्रूव करना है. दैट्स द थिंग. सो एनीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट टुडे जो किसी तरह की कंफ्यूजन में है, असमंजस में है, समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करे, फॉर एग्जांपल चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, स्टक बेस्ट, चूजिंग अ करियर, तो उनके लिए आपके क्या 3 टेकअवेज होंगे? तीन देखो, असमंजस बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, बहुत दिनों बाद सुना मैंने. द थिंग इज कंफ्यूजन इज पार्ट ऑफ लाइफ. और पार्टनर या करियर चूज करना, सब लोग कहते हैं अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी तक नहीं किया. एक तो वो प्रेशर हमें फील नहीं करना चाहिए, नंबर वन. नंबर वन, यू शुड रियलाइज दैट द पीपल अराउंड यू, दे मे बी वेल मीनिंग, पर उनके जो सवाल है वो वेल मीनिंग कई बार नहीं होते हैं, वो प्रेशर ऐड कर रहे हैं. आंटी जी जो पड़ोस में रहती है, मैं कई बार बोलता हूँ ये बच्चों को, "अरे, आंटी जी ने बोल दिया कुछ तुम्हें, तुम जागे हुए रात को कि आंटी ने ऐसे बोली, वो सो रही हैं." तो यू शुड नॉट टेक पीपल दैट सीरियसली, रिस्पेक्ट दैम. नंबर टू, आई थिंक क्लैरिटी विल कम विद, एक तो शोले, एक तो वो टॉस वाली बात है ना कि हेड्स और टेल्स का जब वो हवा में होता है तो पता चलता है क्या चाहिए आपको. सो दिल से पूछो, दिमाग से मत पूछो, एंड गो विद योर हार्ट, बिकॉज व्हाट यू लव यू विल डू बेटर. एंड दैट पर्सन ऑल्सो, रिलेशनशिप में भी यही है कि द हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. और वो अगर बहुत ही ज्यादा आउटलैंडिश है, कोई रोमानिया में रहती है लड़की, आप यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हो, कभी नहीं मिल पाएगी, तो उसको तो छोड़ दो. किसी उसका और को- प्रैक्टिकल आउटले कैसा होगा, वो practical ढूंढो. ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए. हाँ. Number three, I would say that your parents and your other people, they are your well-wishers. Keep consulting them, talking. So Gen Z या millennials का भी है कि they don't discuss enough. Conversations कम है. तो हम भी आजकल कम हो गए हैं कॉन्वर्सेशंस में. यहाँ तो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पॉडकास्ट है, Right. पर वो जो कॉफी वाली कॉन्वर्सेशन है वो जरूरी है. My another question that's coming to my head is कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि हर इंटरव्यूअर आपसे पूछे पर वो पूछता नहीं. उसको पूछना चाहिए कि सर आप, सर नहीं मतलब विवेक, आप अगर आप ये ना होते तो क्या होते, तो पूछो. तो अगर आप ये ना होते तो आप क्या होते? मैं ऐसा ऑथर होता है जो वर्ल्ड टूर पे जा रहा होता है और स्पीच दे रहा होता है एज एन ऑथर, राइटर, स्पीकर, सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं बैठे होते तो मजा आ जाता. What is your favorite cuisine? आई थिंक साउथ इंडियन. I think I was a South Indian in my previous life. Home cooked food or Home cooked, home cooked? Okay. Vegetarian, non-vegetarian? vegetarian. Okay. Your idea of travel? I love traveling by flight or train, not so much by road. What is Chandigarh for you? Heartthrob. I was director tourism. I was director IT. प्रमोट करना मेरा काम था. अभी भी मैं, एक पोलिश लेडी आई हुई है, दोबारा भी आ गई हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो चंडीगढ़ को पूरा वर्ल्ड फेमस कर रही है आजकल रील में. आई एम लविंग इट. What is your idea of motivation? I think it comes from within, and it is basically to connect with the Lord. Ultimately, the Lord is important. Who do you get inspired from the most? Sports people, Sports people. and also Paramahansa Yogananda. Who is your biggest inspiration in life? My father was in Paramahansa Yogananda. If today Paramahansa Yogananda comes in front of you and says कि मांगो वत्स क्या मांगते हो, what will you ask him? I'll say I want to be one with you. Okay. And if he says that it's not possible, उसके लिए थोड़ा time और लगेगा, what will you So say? I'll say I follow you wherever you go. So I end my podcast with this beautiful line because of whom I'm standing here today, and I'm nothing without that force. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you very much.